wait. वेट बच्चों, मैं जरा एक बार विश्वेश दत्ता, विश्वेश प्लीज म्यूट Yes, योर sir. माइक। आप माइक प्लीज बंद कीजिए बेटा। गुड, वेरी गुड। Now come to the question. See, how do we express a number in kg and gram to kg? Okay, हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में दिखाया था कि कैसे हम ग्राम को केजी में कन्वर्ट करते हैं। हम लोगों ने ये भी बात किया था कि कैसे डेसिमल फ्रैक्शंस को आप कन्वर्ट कर रहे थे, है ना। और कितना मजेदार ये सेशन था इन विच वी हैव डिस्कस्ड हाउ दीज fractions change into decimals. Okay, so now here we have to change gram into kg. Suppose it is 1 gram, then how this 1 gram will be converted into kg? Tell me one thing, make a Yes, kg. sir. How many grams? 0.001 kg. No, you have said the answer, but I want to know how many grams. 1 kg is equal to how many grams? 1000 gram. Correct. 1000 gram. 1000 grams, sir. Okay, now tell me one thing. Which unit is bigger, gram or kg? Which unit is kg. bigger unit? Okay, एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल सही। तो आपको कुछ चीजें याद रखनी होगी। मैं आपको बताता हूं कि अगर केजी आपका बिगर यूनिट है एंड व्हेन यू आर कन्वर्टिंग अ स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट, देन यू रिक्वायर टू डिवाइड। 1 is divided by this 1000. Okay, ऐसा कब हो रहा है? When you change a smaller unit to Smaller bigger unit into bigger unit. Yeah, correct. A smaller to bigger. तो आपको क्या करना होगा? डिवीजन। याद रहेगा ये बात? Yes, sir. Yes, इन sir. द सेम वे, जब हम बिगर यूनिट को कन्वर्ट करेंगे स्मॉलर यूनिट में, तो हमें क्या करना होगा? यहाँ तो हमने डिवाइड किया था, हमें यहाँ So क्या करना होगा? multiply. करेक्ट, वेरी गुड। Multiply. तो हम ये जो आपका 1000 है, इस 1000 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? 4 into 1000, that is equal to 4000 gram. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है, स्मॉलर टू बिगर कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा? डिवीजन। एंड बिगर टू स्मॉलर जब हम जाएंगे तो क्या होगा? Multiplication. Multiplication. बिगर टू स्मॉलर यूनिट में कन्वर्जन जब होगा तो क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन। वेरी गुड, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन में। सी, this is the question, express in kg. Okay, one important point is that this is already in kg. So do we require to convert this 4 kg into kg, or it should be written as usual? बोलिए So आप। please repeat question. Okay, first 1 minute, my screen is presented to you or not? No, sir. No, sir. Then why you didn't ask for it? Because I have been presenting and you did not ask. That is why I said कि whether my screen is presented or not. So if you are not asking, you are just missing, because as you know that I usually write in OneNote, and what I have told you previously is written. So please mention if suppose you are not getting the view,
You must say कि sir, are you presenting a screen or not? Okay. तो wait, I hope that you will see here. अब स्क्रीन दिख रहा है बच्चों? Am I audible? Yes, sir. Yes, And sir. screen is being Yes, sir. presented. Yes, sir. Yes, sir. और Yes, ये sir. जो हमने बात किया Yes, था sir. वो दिख रहा है कि हमने कुछ लिखा भी था इसको लेके, बिगर टू स्मॉलर एंड स्मॉलर टू Yes, बिगर. sir. Yes, sir. तो बच्चों आप लोग Yes, क्यों नहीं sir. टोकते हैं? यू मस्ट से कि सर प्लीज समहाउ. ये क्या होता है कि लगातार जब हम लोग कोई काम करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि भाई प्रोसेस हम मिस कर गए. तो यू मस्ट से कि सर स्क्रीन इज प्रेजेंटेड और नॉट प्रेजेंटेड और वेदर यू आर शोइंग योर स्क्रीन और नॉट. तो हमने अभी क्या बात किया था? स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट. व्हाट डू वी डू हियर? डिवीजन. और फिर हमने क्या किया? बिगर टू smaller. Smaller. And what we require to do? Multiplication. Clear है? Multiplication. Clear है यहाँ तक? Clear है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए यहाँ क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपसे पूछा था कि if the question is 4 kg, so do we require to convert kg into kg or should we write it as usual? बोलो. चलिए यहाँ करते हैं. देखिए there is a question of you have to convert this 4 kg and 150 gram into kg only. किस में कन्वर्ट करना है? केजी में. तो बताइए इस केजी को बदलना पड़ेगा क्या किसी में? प्लीज. No, sir. बिल्कुल sir. नहीं. No, sir. तो 4 केजी अपने जगह पे 4 रह जाएगा और ये 150 ग्राम को चेंज करना होगा. Yes, Yes, sir. sir. तो ये बताइए ग्राम जो है Yes, वो sir. छोटा यूनिट है या बड़ा यूनिट है? दैट इज स्मॉलर यूनिट छोटा और unit बिगर है. यूनिट. वेरी गुड. Smaller unit. और स्मॉलर यूनिट को हम बड़े यूनिट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? Divide. Division. तो आप मुझे बताइए कि जब आप 30 वाले नंबर से 150 को डिवाइड करेंगे तो योर रिजल्ट विल बी 0.150 एंड व्हेन यू ऐड अ होल नंबर टू द डेसिमल नंबर द रिजल्ट विल बी 4.150 kg. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि हम लोगों ने कल बात किया था कि किस तरह से लाइक डेसिमल्स को हम ऐड करेंगे और किस तरह से लाइक डेसिमल्स की बहुत सारी बातों को हमने पढ़ा था. तो एक बार हल्का सा वो मैं आपको दिखा दूं. रिकैप्चुलेशन देख लीजिए आप. किस तरह से हमने कंपेयर किया था, किस तरह से हमने डेसिमल्स के सम किए थे, किस तरह से हमने बड़े और छोटे लाइक और अनलाइक डेसिमल्स को हमने डिस्कस किया था और किस तरह से हमने डेसिमल को एक एक चीज़ डिस्कस किया था, किस तरह से डेसिमल सिस्टम्स के बारे में हमने पढ़ा था. ठीक है. तो नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व क्वेश्चंस. और क्वेश्चन में हमने क्या देखा? अभी तो स्मॉलर और बिगर को कन्वर्ट कर रहे हैं. नाउ इफ सपोज you have to change this 45 gram into kg, how will you convert this smaller unit to bigger unit? Tell me. Directly answer you can say. By dividing. By dividing by 10 1. 1000. 1000. करेक्ट. तो 1000 से जब हम 45 को डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? प्लीज. 0.045. 0.045. 0. अच्छा 0.450 होगा या 0.045 होगा? क्या होगा? 0.045. 0.045. फिर से एक बार पूछता हूँ. फिर से एक बार पूछता हूँ कि 0.045 होगा या 0.450 होगा? कौन होगा इन दोनों में? 0.045. 0.045. Okay, is there single student who will say no sir this will take place? कोई बच्चा है तो बोलो. किसी को ऐसा लग रहा है तो? कोई नहीं. कमाल है. बिल्कुल सही हो आप लोग. वेरी गुड. मतलब हम लोगों का जो कल का कॉन्सेप्ट था वो क्लियर है. तो ये जो था वो बिल्कुल गलत है. अगर 450 होता तब ऐसा लिखते. तो आप बिल्कुल सही हो. वेरी गुड. तो 0.045 kg is the right answer when you convert this 45 gram into kg. चलिए वेरी गुड. अब आप देखिए अभी हमने बात किया था केजी को ग्राम के रिलेशन में और हमने जाना था कि देयर इज 1000 ग्राम इन 1 kg. मीटर में क्या जानते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं?
100 centimeter. 100 centimeter. तो इसमें छोटा वाला यूनिट कौन है, सेंटीमीटर या मीटर? Centimeter. Centimeter. वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब बताइए 415 सेंटीमीटर को जब मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या करना होगा? 415 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप बताइए छोटे को बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं या बड़े को छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं? Divide. क्यों डिवाइड छोटे करेंगे? को बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब। इन सेंटीमीटर इज a smaller unit and meter is a bigger unit. When you convert a smaller unit to bigger unit, you require to divide, and dividing by 100. 100. तो आप मुझे बताओ क्या होगा आंसर इसका? सर 4.15 मीटर। थैंक यू, बिल्कुल सही है जवाब। 4.15 मीटर। बिल्कुल सही है जवाब। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। चलिए, वेरी गुड। तो मेरे लिए पहले तो आप क्या करो, ये ई वाला आंसर जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के दो। 25 मीटर एंड 4 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो राइट डाउन दिस आंसर इन चैट बॉक्स प्लीज। वर्तिका, यू आर नॉट करेक्ट। रोशन भी करेक्ट नहीं है। अमन इज करेक्ट। बबी इज करेक्ट। लक्ष्य इज ऑल्सो करेक्ट। अर्पित भी सही है। तो व्हाट डू आई फाइंड दैट मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर गुड नाउ। चलिए यहां देखिए, इट इज 25 मीटर एंड 4 सेंटीमीटर। कन्वर्ट इनटू मीटर। ये बताओ 25 मीटर को कन्वर्ट करने की जरूरत है? नो सर। तो वी विल राइट इट एज यूजुअल। ये तो ऑलरेडी मीटर में है। एंड 4 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा? किससे डिवाइड करेंगे? 100। सर Correct. 0.04. सॉरी, हाँ सही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 0.04, और ऐड किससे कर रहे हैं हम? 25.00 से, क्योंकि होल नंबर के बाद हम पॉइंट के बाद जितने भी जीरो डालना चाहें डाल सकते हैं। तो आपका आंसर होगा ये, एंड दैट इज करेक्ट। तो बच्चों क्लियर हुआ? थोड़ा सा दिमाग में क्लियर हुआ? मैंने क्वेश्चन जानबूझ के ऐसा इसलिए पूछा था। Yes. यस सर। यस सर। वेरी गुड। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। अनिल वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू बी। देखिए, ए से वो पहले गया बी तक, है ना? सर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 तो अभी हमने बात की है। अच्छा, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। आता है बच्चों एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना? मैं बताता Yes. हूँ। Yes. यस सर। जैसे Yes, sir. 415 है ना, तो इसको आप लिख सकते हो पहले 400, उसके बाद 10, उसके बाद 5। अब पॉइंट के बाद का नंबर है, तो यहाँ 2/10 और यहाँ 3/100। 100. इस तरह से आप लिख सकते हो एक्सपेंडेड फॉर्म में। जहां से पॉइंट शुरू होता है उसके बाद से डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 बढ़ता चला जाएगा। ठीक है? यस तो सर। एक क्वेश्चन एक्सपेंडेड वाला भी बना ही लो आप लोग। चलिए बनाइए आप क्वेश्चन नंबर ई। राइट डाउन इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म इन चैट बॉक्स। लिखिए। हो गया बच्चों? Yes, sir. वेट अ मिनट, आई एम सीइंग योर चैट बॉक्स।
क्या बात है, केवल 1.5 और 0.7 है क्या? देख लेता हूं मैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है आपका, सही चल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 क्या कहता है? अनिल वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू बी एंड देन प्लेस सी। ए इज 9.5 मीटर फ्रॉम बी। यहाँ लिखा हुआ है 9.5, बी सी से इतना दूर है, सी डी से इतना दूर है, ए डी से इतना दूर है। तो यहाँ बताया हु ट्रेवल्ड। यहाँ एक तो अनिल ट्रेवल कर रहा था और एक डेविड ट्रेवल कर रहा था। मतलब दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल किए को ऐड करो, ऐड करके देखो कि कौन ज़्यादा गया और कितना ज़्यादा गया। मतलब दोनों के डिस्टेंस को निकाल के माइनस कर देना, तो पता चल जाएगा हु ट्रेवल्ड मोर बाई हाउ मच। समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. Sir, Yes, sir. Dravid traveled more than Anil by 0.37 kilometers. 37 kilometers. चलिए मैं देख लेता हूं। अनिल जो है ना ए से बी गया और फिर सी गया, ठीक है, यानी कि ए से बी 9.5 और 13.47 को हम ऐड करेंगे। 13 और 9 कितना होगा? Sir, 22.97. 22.97 ये जो है अनिल गया है, 10 मच किलोमीटर ये अनिल गया है। डेविड कितना गया देखते हैं। ए टू डी गया, मतलब 7.82, और फिर ये 7 और 15 22, ये ज़्यादा गया। Sir, 23.34. तो डेविड जो है वह है 23.34 गया, और इसको माइनस करना है। 14 में से 7 गया 7, 12 में से 9 गया 3, 0.37 किलोमीटर इज आंसर। यही है आप लोगों का? Yes, sir. इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। तो चलिए अब मैं आपको देता हूं क्वेश्चन 11 नंबर बनाइए। 11 and 13, that is your class work. Sir, 11 number answer is 21.217. तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बच्चे, आप लोग ये एक्सरसाइज कल मैंने होमवर्क कर दिया था तो कर लिए थे आप लोग, सही है क्या? 13 number 11.12. 13 number 8.88. इट इज 49। यहाँ क्लियर में लिख दो। 11.12। 13 number 11.12. करेक्ट। देन आई होप कि सभी बच्चों का याद आ रहा है। तो चलिए हम लोग आते हैं कमिंग टू द अनदर एक्सरसाइज, दैट इज 3B। और हमने यहाँ डिवीजन सीखा था डेसिमल फ्रैक्शन का। अब हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई का पहले कुछ ट्रिक बताऊं।